Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope all of you will be fine. Inshallah ta'ala, may Allah Almighty keep you away from all evils. Ameen. Dear students, when everyone else might abandon you, Allah subhanahu wa ta'ala will still be there for you, just as He always was. That's love of Allah subhanahu wa ta'ala, the creator of this universe. Cherish His love and your life will become easy, inshallah ta'ala. Let's start our today's lecture with a translation of chapter number 14, Louis Pasteur. Pasteur was born in quite humble circumstances at Dole in the Jura district of France in 1822. His father, as a young man, had been one of Napoleon's conscripts and had won the cross of the Legion of Honor on the field of battle for valor and fidelity. Thus, the son was fortunate in possessing forebears of character and strength. There is much evidence to prove of the influence of the father on the son, Pasteur showing time after time the strength of his devotion to France. लुइस पास्चर फ्रांस के जोरा डिस्ट्रिक्ट में या ज़िले में डोल के मुकाम पर 1822 में काफ़ी अदना हालात में पैदा हुआ, यानी बहुत बुरे हालात थे उनके घर के। उसका बाप जवानी में नेपोलियन की फ़ौज में एक भर्ती किया हुआ सिपाही रह चुका था और जंग के मैदान में दिलेरी और वफादारी के लिए क्रॉस ऑफ लीजन, ठीक है, या लीजन ऑफ ऑनर जो है वो जीत चुका था। इस तरह बेटा खुशकिस्मत था कि उसके आबा अजदाद के किरदार और ताकत के मालिक थे। बाप के बेटे पर असर को साबित करने के काफ़ी शहादात मौजूद हैं। पास्चर बार बार फ्रांस के साथ अपनी लगन और वफादारी को दिखाता रहा। वेलर कहते हैं बच्चों बहादुरी और फाइडेलिटी होता है बच्चों वफादारी। He was perhaps even more of a patriot than of a scientist. For example, in 1848, when Europe was politically upheaved, Pasteur enrolled himself in the National Guard and seeing one day in the Place du Panthéon a sort of altar labelled Autel de la Patrie, promptly placed on it all his worldly wealth, 150 francs. Again, in 1870, he was returning from Germany to France and at Strasbourg heard that France was on the verge of war with Germany, whereupon he hurried to Paris and was exceedingly disappointed when the military authorities refused to enroll him in the National Guard on the score that a half-paralyzed man was useless in the army. He had a paralytic stroke 2 years before, in 1868, and never shook off the physical effects. Though after 2 years he was able to continue his mental work as well as ever before. अब वो शायद एक साइंसदान की बजाय बच्चों एक हुब्बुल वतन ज़्यादा था, अपनी वतन से मोहब्बत करने वाला, ठीक है। और मिसाल के तौर पर 1848 में जब यूरोप जो है वो मुश्किलात में घिरा हुआ था तो पास्टर ने अपना नाम नेशनल गार्ड में लिखवा दिया और एक दिन वो पेंथियन में कुर्बानगाह जैसी जगह पर मुल्क के लिए 2 लिखा देकर अपनी तमाम तर दुनियावी दौलत यानी 150 फ्रैंक उसके पास रकम थी वो उसने वहाँ रख दिए। और दोबारा 1880 में वो जर्मनी से वापस फ्रांस आ रहा था और स्ट्रेसबर्ग के मुकाम पर उसने सुना कि फ़्रांस जर्मनी के साथ जंग के लिए तैयार खड़ा है। वो फ़ौरन फ्रांस पहुँचा और उसे शदीद मायूसी हुई जब उसे इस बना पर कि एक नीम मफलूज आदमी को की जो है फ़ौज में हैसियत नहीं होती, कोई बेकार होता है वो, तो फ़ौजी हुकाम ने उसे नेशनल गार्ड में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। क्योंकि बच्चों 2 साल पहले 1868 में उस पर फालिज का हमला हुआ था और वो उसके जिस्मानी असरात से छुटकारा हासिल नहीं कर सका था। अगरचे उस फालिज के अटैक के 2 साल के बाद वो हमेशा की तरह अपने जहनी काम करने के तो काबिल हो गया था, लेकिन जिस्मानी तौर पर जो उसको कमज़ोरी हुई थी वो कभी भी दूर नहीं कर सका। पेट्रियट कहते हैं बच्चों मुहब्बुल वतन, अपहीव्ड कहते हैं बगावत में खड़े किए हुए, वर्ज ऑफ वॉर कहते हैं जंग के करीब, एक्सीडिंगली कहते हैं बहुत ज़्यादा।
However, to return to his boyhood, when he was 2 years old, the family moved from Dole to Arbues, where his father bought a small tannery, and here Pasteur was sent to school at the communal college, where at first he showed no interest whatever in books or study but devoted his attention to fishing and making sketches of his companions. अब हम उसके बचपन की तरफ वापस आते हैं बच्चों। जब वो सिर्फ 2 साल का था तो उसका ख़ानदान डोल से जो है वो आर्बस पहुंच गया, जहां उसके बाप ने एक चमड़ा रंगने का छोटा सा यूनिट ख़रीद लिया था। और यहाँ पास्चर को कम्युनल कॉलेज में स्कूल भेजा गया, जहाँ उसने शुरू में किताबों में जो कुछ था उसमें या पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ना ली। यानी बचपन में बहुत ही बदशौक़ किस्म का बच्चा था वो, बल्कि उसने अपनी तवज्जो मछलियाँ पकड़ने और अपने दोस्तों के तस्वीरी खाके बनाने पर मरकूज़ रखी। However, directly he grasped the fact that his education was a great drain on the family funds. He set himself in earnest at school and soon developed the passion for work which marked the whole of the rest of his life. लेकिन जल्द ही बच्चों उसको इस हकीकत से आगाही हो गई कि उसकी तालीम जो उसके ख़ानदान की आमदनी पर बहुत बड़ा बोझ है। तो उसने इस चीज़ का एहसास होते ही स्कूल में बड़ी दिलजमी के साथ पढ़ना शुरू कर दिया और जल्द ही काम के लिए एक ऐसा जज्बा पैदा कर लिया जो उसकी बाकी मानदा ज़िंदगी में भी नुमायां तौर पर हमें नज़र आता है। The college at Arbues did not teach philosophy, and so after a time Pasteur went on to Besançon, a bigger place with better educational provision. Here he graduated in science and arts and was given a post on the college staff. अब आरबीओस के कॉलेज में फ़लसफ़ा नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए कुछ अर्से के बाद पास्टर जो है वो बेसानकन दोबारा वापस चला गया, जो बेहतर तालीमी वाक़े के साथ एक बड़ी जगह थी। यहाँ उसने साइंस और आर्ट्स में ग्रेजुएशन की और उसे कॉलेज स्टाफ में ही जगह दे दी गई। He was already much interested in chemistry too, much so far for the professor of that subject at Besançon, whom Pasteur used to embarrass with unanswerable questions. The professor in question disapproved of saying I don't know and used to try to keep Pasteur in his place by telling him that questions were to be asked by the teacher or the scholar and not vice versa. ठीक है, तो उससे पहले ही केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी और ये बेसानकन इस मज़मून के प्रोफेसर के लिए बहुत ज़्यादा था, जिसमें पास्टर जवाब ना दिए जा सकने वाले सवाल उससे पूछ कर उसे परेशान किए रखता था। ठीक है, बेसानकन में जिस मज़मून के प्रोफेसर थे उनके लिए ये बात बहुत ज़्यादा थी, जो अक्सर पास्टर के सवालों से परेशान हो जाते थे और वो ये नहीं कहते थे कि भाई मैं नहीं जानता, ठीक है, या वो कहना पसंद नहीं करते थे और ये कहकर पास्टर को अपनी जगह पर रखने की कोशिश करते थे कि सवालात उस्ताद तालिब इल्म से पूछता है कि या तालिब इल्म उस्ताद से। ठीक है, अच्छा जी, ग्रास कहते हैं खूब समझ गया, अंडरस्टूड वेल। एम्बेरस कहते हैं शर्मिंदा होना, दिमागी परेशानी में मुब्तला होना। ठीक है, In 1842, that is when he was 20, he went in for the entrance examination to the great École Normale in Paris and came out 14 on the list, whereupon he refused to enter, being so disappointed at not getting a higher place. He took the examination again in the following year and was 4th on the list, which apparently more or less satisfied him. अब 1842 में जब वो 20 साल का हो गया तो बच्चों पेरिस की एक बड़ी अजीम दरसगाह थी एकल नॉर्मल, वहाँ दाखिले के लिए इम्तहान देने के लिए गया, लेकिन फ़हरिस्त में उसका नाम जो है वो 14वें नंबर पर आया, जिस पर वो बुलंद दर्जा हासिल ना कर सकने पर इस कदर मायूस हुआ कि उसने दाखिला लेने से इनकार कर दिया। अगले साल उसने दोबारा इम्तहान दिया और इस फ़हरिस्त में 4थे नंबर पर आया था, जिसने ज़ाहिर तौर पर उसे थोड़ा सा मुतमईन कर दिया था। At this point, one may say a word about his private affairs. In 1848, at the age of 26, he became deputy professor of chemistry in the University of Strasbourg. And here he met his future wife, who was the daughter of the rector of the Strasbourg Academy. They were married in 1850, and it seems that Pasteur was so buried in his work on the wedding day that he entirely forgot the ceremony and had to be fetched by a friend. The marriage, however, was extremely happy, and the wife seems to have been an important factor in her husband's work.
यहाँ अब हम इसके ज़ाती मामलात पर कुछ बात कर सकते हैं। 1948 में 26 साल की उम्र में 1848 में 26 साल की उम्र में जब वो स्ट्रेसबर्ग की यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का डिप्टी प्रोफेसर बन गया था, यहाँ उसके मुस्तकबिल की बीवी से मुलाकात हुई जो कि स्ट्रेसबर्ग एकेडमी के रेक्टर की बेटी थी। उनकी जो है वो 1850 में शादी हो गई और मालूम होता है कि शादी वाले दिन पास्टर अपने काम में इस कदर मशगूल था बच्चों कि वो मुकम्मल तौर पर अपनी शादी की तकरीब को ही भूल गया था और उसके दोस्त जो हैं वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर शादी की तकरीब में पहुँचे। ताहम शादी उसकी जो थी वो बहुत ज़्यादा खुशगवार थी और बीवी अपने खामन के काम में एक अहम अंसर नज़र आती थी। In 1860, the French Academy offered a prize for the solution of the problem whether spontaneous generation was or was not a fact, and Pasteur entered for the competition and settled the matter once and for all in the negative, proving that if a substance be sufficiently heated to destroy all life, and if the air in contact with it be filtered so that it is free of germs, then the substance does not alter, that is, bacteria do not develop in it. As usual, his opponents said they had obtained opposite results. So, Pasteur asked for arbitration, and the Academy appointed a commission before which Pasteur and his adversaries were to repeat their experiments. 1860 में फ्रेंच एकेडमी ने इस मसले के हल के लिए इनाम का ऐलान किया कि आया खुद ब खुद पैदाइश हकीकत है या नहीं, और पास्चर ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और ये साबित करते हुए कि अगर एक मादे को तमाम तर ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी देर तक गर्म कर लिया जाए, उससे छूने वाली हवा को फ़िल्टर किया गया हो ताकि ये जरासीम से पाक हो जाए, तो मादे में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी, यानी उसमें बैक्टीरिया परवान नहीं चढ़ेंगे, और इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए नफ़ी में तय कर दिया। हस्ब मामूल उसके मुखालफिन ने कहा कि उन्होंने इसके बरक्स नताइज हासिल किए हैं, लिहाजा पास्चर ने सालिसी के लिए सालिसी के लिए क्या कहते हैं बच्चों की तीसरी पार्टी जो है वो आके इन दोनों के दरमियान फ़ैसला कराए, और एकेडमी ने एक कमीशन मुकर्रर कर दिया जिसके सामने पास्चर और उसके मुखालफिन ने अपने अपने तजर्बात दोहराने थे। ऑन द अपॉइंटेड डे पास्चर अपीयर्ड लोडेड विद apparatus. His opponents, however, had none. They said the weather was unfavorable and they would like to wait. The commission very reasonably refused. Pasteur did his experiment successfully and won the prize. In the course of these experiments, Pasteur found that some germs are very difficult to destroy by heat. For example, milk developed bacteria when after several minutes boiling, but after raising the temperature 10 degrees centigrade above boiling point, he found that no bacteria were left alive. अब मुकर्ररा दिन पर पास्चर अपने सादो सामान से लदा हुआ नमूदार हुआ, तहम इसके मुखालिफिन कुछ भी नहीं लाए थे और उन्होंने कहा कि मौसम नामुवाफ़िक़ है, इसलिए वो इंतज़ार करना चाहते हैं। तो कमीशन ने बड़ी मक़बूलियत से इनकार कर दिया। पास्चर ने अपना तजर्बा कामयाबी से किया और इनाम जीत लिया। इन तजर्बात के दौरान पास्चर को इल्म हुआ कि कुछ जरासीम को हरारत के ज़रिए हलाक करना बहुत मुश्किल होता है। मसलन दूध को अगर आप कई मिनट तो उबाले जाने के बावजूद उसमें बैक्टीरिया जो है वो पैदा हो जाता है, लेकिन अगर दर्जा हरारत को नुक़्ता खौलाव से 10 सेंटीग्रेड ऊपर ले जाने से उसने देखा कि कोई बैक्टीरिया ज़िंदा नहीं बचे। ठीक है। This work on spontaneous generation was of great value because it stimulated other scientists to study the habits of germs. And much of our modern knowledge of these invisible but very active plants sprang from Pasteur's discoveries. क्योंकि उसने दूसरे साइंसदानों को जरासीम की आदात का मुताला करने की तरगीब दी थी और इन गैर मरई लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ाल नबाताती नामियों या जरासीमों के बारे में हमारा बहुत सा जदीद इल्म पास्चर की दरियाफ़्त की वजह से ही उभर कर हमारे सामने आया। स्पॉन्टेनियस कहते हैं बच्चों खुद ब खुद, हैपनिंग बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, और जनरेशन प्रोडक्शन कहते हैं बर्थ या पैदा होना। आर्बिट्रेशन कहते हैं सालिसी यानी सेटिंग या डिसएग्रीमेंट बाय अ रेफरी, थर्ड पर्सन को आके फ़ैसला कराए। एडवर्सरीज़ कहते हैं मुखालिफ। This brings us on to 1870 when France and Germany were plunged into war, and Pasteur, ever intensely a lover of France, was filled with sorrow and anxiety. And with loathing of Germany, he wrote to the University of Bonn
which had bestowed on him the degree of Doctor of Medicine, asking that his name should be removed from the faculty of the university and returning his diploma, of which he speaks thus. और ये बात हमें 1870 में ले जाती है बच्चों, जब फ्रांस और जर्मनी जंग में कूद पड़े और पास्चर जो हमेशा से फ्रांस का सख्त शदाई था, गम और गुस्से से भर गया और जर्मनी से नफ़रत के साथ उसने यूनिवर्सिटी को लिखा कि जिसने उसे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री दी थी उसका नाम यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी से या तदरीसी अमले से निकाल दिया जाए। और अपना डिप्लोमा वापस करते हुए उसने यूँ कहा, प्लंज कहते हैं बच्चों कूद पड़ना, इंटेंसली कहते हैं शदीद तौर पर, लोथिंग कहते हैं नफ़रत, बेस्टोड ऑन हिम उसे अता की गई थी। Today the sight of this parchment is odious to me, and I feel offended at seeing my name placed under the patronage of a name doomed henceforward to execration by my country, that of Rex Guillemets. आज कागज़ के इस टुकड़े का नज़ारा मेरे लिए काबिल नफ़रत है। मुझे अपना नाम एक ऐसे नाम की सरपरस्ती में देखकर दुख होता है जिससे मुक़द्दर में आइंदा मेरे मुल्क की लानत है, जिसका नाम रेक्स गुलेमस है। ओडियस कहते हैं बच्चों नफ़रत अंगेज़ और ऑफेंडेड कहते हैं दुख होता। तो ये बच्चों पास्चर की अपने मुल्क से मोहब्बत थी, क्योंकि उसने मेडिसिन की डिग्री जो थी वो उसने जर्मनी से ली थी और जर्मनी जो है वो उसके मुल्क का उस पर दुश्मन था। जर्मनी से फ्रांस की लड़ाई चल रही थी, तो उसने अपनी मेडिसिन की जो डिग्री थी वो उसने वापस कर दी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, इसको ध्यान से पढ़िएगा, रिवाइज़ कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने ईडियम्स की तरफ, जो आज आपने करने हैं 281 से 285 तक। 281 है बच्चों पार्ट एंड पार्सल, ओढ़ना बिछोना होना, लाजमी हिस्सा होना। 282 पे लिप सर्विस टू, ठीक है। पे लिप सर्विस टू कहते हैं बच्चों के महज ऊपर से तारीफ़ करना, ठीक है। और 283 पे थ्रू द नोज़, ज़रूरत से ज़्यादा रुपया अदा करना। 284 पिकअप, किसी ख़ास काबिलियत बगैर कोई चीज़ हासिल कर लेना या कोई चीज़ उठा लेना। और 285 है बच्चों प्ले द गेम, लेन देन में खरा होना। अब आ जाते हैं आपकी प्रपोजिशनल फ्रेजेस की तरफ, जो आपने आज 123 से 127 तक करने हैं। 123 है बच्चों कैरी थ्रू, अंजाम को पहुंचाना। कास्ट आउट या कास्ट ऑफ, निकाल देना। कैच एट, झपटना। कैच और ग्रास्प एट आ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। कॉशन अगेंस्ट, तंबीह करना, ठीक है, मना करना। और ट्रांसलेशन का आज हम पैराग्राफ नंबर 24 करेंगे, ठीक है जी। ध्यान से सुनिए, मैं आपको लिखवाती हूँ, डिक्टेट करवाती हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इंतहाई सादा थी। फुल स्टॉप। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ में भी हाथ डाला कामयाबी ने आपके कदम चूमे। फुल स्टॉप। तिजारत से लेकर हुक्मरानी तक हर शुबा हयात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। फुल स्टॉप। रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया की अजीम तरीन हस्ती थे। फुल स्टॉप। 1300 साल कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमहूरियत की बुनियादें रख दी थी, ठीक है बच्चों। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द होली प्रॉफिट में पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। इसको आप अगर शॉर्ट करके ले, वैसे तो मेरे ख्याल में पूरा ही लिखना चाहिए, मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पीस बी अपॉन हिम जो लिखेंगी, आप ये चारों वर्ड्स PBUH जो है वो आपने कैपिटल से लिखना, कोई फर्स्ट इसके दरमियान में आपने जो है वो फुल स्टॉप नहीं डालने कोई भी, ठीक है। सादा थी, वेरी सिंपल। आपने जिस चीज़ में भी हाथ डाला, ठीक, वट एवर ही टुक अपॉन हिमसेल्फ, ठीक है, कामयाबी ने आपके कदम चूमे। सक्सेस केम टू हिम। और हर शोबा हयात में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। अच्छा जी, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी दुनिया की अजीम तरीन हस्ती थे। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। और 1300 साल कबल ही आपने जमहूरियत की बुनियादें रख दी थी। एंड ही लेड डाउन द फाउंडेशंस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है।
तो ये आपका डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बच्चों मैंने आपको मीनिंग्स बता दिए हैं, इसको आपने अपनी कॉपीज़ में सॉल्व करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, सबको ध्यान से पढ़िएगा, कॉपीज़ में उतारिएगा अपनी, लिखिएगा और बराए मेहरबानी असाइनमेंट्स भी ज़रा भेज दिया करें आपको, सिवाय चंद बच्चों के। बाकी पूरी क्लास जो है ना वो पता नहीं किस मसरूफ़ियत में है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। फिर बाद में आप लोग ही परेशान होंगे बच्चों, अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो अपना सारा जो आज का लेक्चर है इसको ध्यान से सुनिएगा दोबारा, ठीक है, पढ़िएगा। और आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।